Okay. So, for this subject, this is one of the lab for ITIT, that is Solution Promotion in Innovative Technology. Okay, so out of four, this is one technology, that is additive manufacturing and reverse engineering. So there will be three practicals for each labs. So four labs are there. One will be drone technology lab, then the PLC lab, and a robotics lab. ऐसे चार अलग अलग लैब्स रहेंगे. ओके, हर एक लैब का देयर विल बी थ्री एक्सपेरिमेंट्स. ओके, so for our this additive manufacturing, we have a CAD modeling experiment number one. Then second one will be the same CAD model you have to use for slicing purpose. Okay, slicing करने के लिए and 3D printing of that. And third will be a reverse engineering, in which we use hexagon arm for scanning any entity or body and recreating the CAD model too, or CAD surface model from the existing physical body. Okay, so before starting this additive manufacturing, we will discuss about the history of this type of technology. Okay, so previously this starts from early 80s by Charles, and it started his first research work over this technology, and it named as a stereolithography apparatus. यानी पहला जो टेक्नोलॉजी आया इस पे 3D प्रिंटिंग का, तो वो जो उसने वर्किंग प्रिंसिपल यूज किया था, दैट इज SLA, stereolithography apparatus, in which the material used for printing is a liquid resin. Is a liquid resin. Okay. तो उसमें क्या क्या था कि मटेरियल जो था रेजिन वाला लिया था, टैंक एक रहता था, इट हैज अ टैंक, एंड फॉर क्यूरिंग पर्पस ऑफ दैट मटेरियल, यानी कि उसको सॉलिडिफाई करने के लिए इट यूजेस अ लेजर. लेजर यूज किया था, जिससे कि क्या होता है कि मटेरियल सॉलिडिफाई होता है, लेयर बाय लेयर दैट मॉडल इज क्रिएटेड बाय गिविंग फर्स्ट requirement of that printer is that you have to provide a CAD डेटा. CAD डेटा उसको देना जरूरी है. देन CAD डेटा के बाद आपको उसको स्लाइस करना पड़ता है टू गिव द मशीन द एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स. कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए कितना उसका डायमेंशन है, वो मशीन को पता होना चाहिए. सो फॉर दैट वी रिक्वायर अनदर सॉफ्टवेयर, दैट इज स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर. तो ये 1982-83 में CAD पहले आया था. तो CAD का यूज करके चार्ल्स ने 3D प्रिंटर बनाया था. तो वो कौन सा था? स्टीरियोलिथोग्राफी एपरेटस, SLA. ओके, उसके बाद कमर्शलाइज, फिर उसका यूज क्या होने लगा, दैट इज यूज फॉर प्रोटोटाइपिंग पर्पस. यानी कि कोई भी 3D मॉडल जो है, एक्चुअल प्रोडक्ट जो रहता है, दैट रिप्लिका ऑफ दैट एक्चुअल प्रोडक्ट. ओके, whether it not be a working condition, but the aesthetic wise the product replicate that actual product which is going to be manufactured. Okay, तो उसके लिए वो प्रोटोटाइपिंग के लिए यूज होगा. तो इसका नाम क्या था? रैपिड प्रोटोटाइपिंग. जो इसका टेक्निकल टर्म नेम इज अ रैपिड प्रोटोटाइप. रैपिड यानी कि क्या? फास्ट आपको ये प्रोटोटाइप बना के देता है विदाउट एनी कंडीशन ऑफ this die making, mold making, then core making, and after post processing of machining की जो जरूरत पड़ती थी वो उसमें लगती नहीं थी. तो आप पहले से ही प्रोडक्ट अगर देखना चाहोगे कि कैसे एस्थेटिक वाइज फिजिकल प्रोडक्ट दिखता है, तो उसको क्या बोलते थे? प्रोटोटाइप. एंड फॉर दैट एप्लीकेशन दिस टेक्नोलॉजी यूज. Then commercialized this technology comes into picture in 1998 by Stratasys. So Stratasys is a company based in Israel. Okay, still now its headquarters is in Israel, and other in Asian countries, Hong Kong, India, okay, and other countries, US also, and they are collaborated, and they sell their printers through it. So they started with this SLA technology and FDM technology, fused deposition modeling. यानी उन्होंने एक अलग टेक्नोलॉजी लाई, that is fused FDM
टेक्नोलॉजी फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। दिस मीन्स दैट मटेरियल को क्या करना है, पिघलाना है, मेल्ट करना है, उसके बाद उसको एक्सट्रूड करके डिपॉजिट करना है, फ्यूजिंग द मटेरियल देन डिपॉजिटिंग इट एंड क्रिएटिंग द मॉडल। इसलिए उसका नाम क्या है, FDM, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। अपने पास जो प्रिंटर है वो भी FDM प्रिंटर है, और दूसरा जो है पॉलीजेट प्रिंटर है। तो अभी फिलहाल के कंडीशन में स्टैटसिस इज मीन्स क्रिएटिंग और मैन्युफैक्चरिंग polyjet printers, then FDM printers, then SLS और SAF printer, okay, selective absorption fusion वाला पॉलीमर प्रिंटिंग है, लेजर प्रिंटिंग का। और उसके बाद okay, इतना ही है, इतने 3 मेन उनके प्रोडक्ट है। तो वो F सीरीज से FDM ये सेल करते हैं, J सीरीज फॉर दिस पॉलीजेट, इसलिए J सीरीज है, और H सीरीज फॉर सैफ। तो इतने ये मशीन्स यूज होते हैं। फोर्टस जो है उनका FDM में टॉप उसका मॉडल है, ओके, और बाकी केस में H सीरीज में उनकी आते हैं। तो ये 1998 से उन्होंने स्टार्ट किया, अब तक वो ये प्रिंटर बना रहे हैं। उसके बाद 3DS करके 3D सिस्टम्स करके कंपनी आई, या फिर EOS आई, ये सब रिवोल्यूशन में लास्ट डिकेड में चालू हुआ। तो फिर रैपिड प्रोटोटाइपिंग से अभी ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग नाम कैसे चेंज हुआ, because previously this is used for prototyping purpose, but by improvement in the technology, the bed size पहले उसके कितने आते थे, 100 बाय 100, 125 बाय या 250 बाय 250 का मैक्स टू मैक्स आता था, और उसमें से पॉलीमर प्रिंट होते थे। फिर बाद में से मेटल आने लगे, दैट टेक्नोलॉजी नेम एज सिलेक्टिव लेजर मेल्टिंग, यानी SLM आया। तो उसके बाद उसके बेड के साइज बढ़ने लगे। तो अभी फिलहाल जो मैक्सिमम बेड साइज अवेलेबल इन मार्केट, दैट साइज इज 1100 X में रहेगा, और 600 Y में, और Z में 400। सो दैट मच हाइट ऑफ दैट मच साइज ऑफ योर प्रोडक्ट कैन बी इजीली मैन्युफैक्चर्ड, ओके। हाँ, मेटल रहेगा। तो उसमें क्या होता है कि SLS एंड SLM जो ये दो चीजें हैं, दिस वर्क on the similar working principle, that is laser is used to solidify, और मटेरियल जो रहेगा वो पाउडर फॉर्म में है, that is in the form of powder, okay। इसमें अपने पास जो दो प्रिंटर है, एक जो है फिलेमेंट वायर फॉर्म में है, okay, और अनदर दूसरा जो प्रिंटर है पॉलीजेट वाला, वो लिक्विड फॉर्म में कार्ट्रिजेस है, तो वो लिक्विड फॉर्म में। तो ये जो अपना SLS और SLM जो रहता, that is in the form of पाउडर फॉर्म में रहेगा वो। और SLS जो रहता है सिलेक्टिव लेजर सिंट्री, जिसमें लेजर इंटेंसिटी कम रहती है, क्योंकि वो पॉलीमर को सॉलिडिफाई करने के लिए रहता है। तो दैट कम्स अंडर 100 वैट टू 400 वैट की लेजर इंटेंसिटी का रहेगा उसका। और वो जो है सिलेक्ट, उसको बोलते हैं SLS, ओके। और उसको DMLS भी बोलते हैं मेटल को, और SLM बोलते हैं सिलेक्टिव लेजर मेल्टिंग, जिसमें लेजर इंटेंसिटी जो है बढ़ जाती है 400 वैट से लेकर 1000 वैट, और मल्टीपल लेजर्स आर यूज्ड, जिसमें मेल्ट होता है पाउडर पार्टिकल्स, और होमोजेनाइज होके आपका पार्ट जो स्लाइस है वो सॉलिडिफाई होते होते आपका पार्ट बनते जाता है, ओके। बैच कौन सी है? D2 है। नहीं, आपका मटेरियल कैसा है, किस पे डिपेंड है कि उसको सपोर्ट कितना लगने वाला है, और आपकी टेक्नोलॉजी कौन सी है, उसके हार्डवेयर जो पार्ट्स यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड है। अभी पाउडर वाले में कैसा होता है कि साइड की जो पाउडर रहती है विदाउट ऐसे एक पूरा ट्रॉली रहेगी, अंदर बेड रहेगा, अब बेड प्लेटफॉर्म पे क्या होगा, वो पाउडर पहले स्प्रेड होगी, उस पर लेजर से एक लेयर बनेगा। यानी कि सपोज ऐसा आपको ये पार्ट बनाना है, तो नीचे का क्रॉस सेक्शन क्या आएगा, पहला एक सर्कल, फिर दूसरा, फिर ये क्रॉस सेक्शन का सर्कल यहाँ पे जब आएगा तब डायमीटर बढ़ जाएगा, यहाँ जाएगा तो डायमीटर बढ़ जाएगा, फिर ये पार्ट आएगा तो थोड़ा अलग होगा क्रॉस सेक्शन। तो ये ऐसे करते करते लेयर वाइज वो बनते जाता है पार्ट, ओके। तो क्या करता है, साइड की पाउडर जो रहेगी वही उसको सपोर्ट करती है, जिससे कि सपोर्ट आपको उसमें नहीं लगेगा। और बाद में जो जब अब पार्ट बनेगा तो आपको क्या करना है कि आपका पार्ट उसमें से वैक्यूम करके निकालना है, और बाकी की जो पाउडर रहेगी दैट कैन बी स्ट्रेन एंड रीयूज्ड अगेन, उसको फिर से हम यूज कर सकते हैं प्रिंटिंग।
हाँ हीटेड रहेगा। तो आपको निकालते समय भी प्रिकॉशन लेनी है कि मास्क कंपलसरी करना पड़ता है उसमें, क्योंकि पाउडर पार्टिकल फाइन रहती है, और आपको ग्लव्स भी पहनने पड़ते हैं वो केस में। ठीक है, और गॉगल्स। मेटल्स जो यूज होगा उसमें देखो, आपको आपका जो प्रिंटर है उस पे लेजर की कितनी इंटेंसिटी, उस पर से आपके मटेरियल्स फाइनलाइज होते हैं, कि जिसकी मेल्टिंग पॉइंट है उसकी रेंज जितने रहेंगे उस हिसाब से आपके मेल्टिंग पॉइंट सपोर्ट होगा। मोस्टली जितने पाउडर पार्टिकल्स के आपके मेटल्स रहेंगे वो उसमें सपोर्ट होता है, पर उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा एसएस का सपोज मटेरियल, तो फिर वो प्रिंटर आपका वो मटेरियल सपोर्ट नहीं करेगा। ओके, वो डिपेंड्स आपकी कैपेसिटी ऑफ योर प्रिंटर। अच्छे तरीके हैं। विवेक, ठीक है, बीटू है ना, विवेक जोशी, शिवम जाधव, हर्षल, विक्रांत, शाश्वत, रेनू, समृद्धि, और एक समृद्धि शेट्टी, गायत्री, आदित्य, जैनेश, श्रुति, फहद। ठीक है, तो अपने पास जो है ये दो टाइप के प्रिंटर है, अपने पास ये नहीं जो है एसएलएस और एसएलएम वाला प्रिंटर नहीं। मैं आपको पर उसका एक वीडियो दिखाता हूँ, so that you can get the idea how it works. Okay, so starting with this presentation, इसमें क्या है देखो, we learn about the basics of 3D printing. Okay, तो ये additive manufacturing क्यों ये बोलना रहेगा, क्योंकि ये पार्ट्स जो इसमें बनने लगे पहले प्रोटोटाइपिंग के लिए यूज होते थे, देन दिस पार्ट्स विल बी डायरेक्टली यूज फॉर एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल बोइंग का प्लेन है, तो उसके जो इसके पार्ट्स है, एरोस्पेस पार्ट जो जितने भी बनते हैं वो पूरे 3D प्रिंटेड पार्ट्स है, बिकॉज लाइटर वेट की एप्लीकेशन थी, वो हिसाब से लाइटर वेट में बनाता है। कॉम्प्लेक्सिटी कितनी भी रहे आपका 3D प्रिंटर वहाँ पे काम करता है। ओके, देन फॉर बायो मेडिकल एप्लीकेशन, इम्प्लांट बनाने के लिए, उसके बाद ऑटोमोटिव में स्पेयर पार्ट्स वो बनाने के लिए यूज होता है, कस्टम प्रिंटिंग के लिए होगा, प्रोडक्ट डिजाइनिंग के लिए होगा। अपना जो प्रिंटर है अभी डैप के लिए, डैप यानी डिजिटल एनाटॉमिक प्रिंटिंग, तो एनाटॉमिकल पार्ट्स बनाने के लिए ये यूज होता है। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस में दिस इज यूज। एंड एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग होने लगी। पहले क्या होता था, सिंगल प्रोडक्ट प्रिंट होके आता था, तो इसमें आपको बैच प्रोडक्शन भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बैच साइज बढ़ गई तो आप मल्टीपल कंपोनेंट्स पार्ट्स जो है प्रिंट कर सकते हैं। फिर ये मैन्युफैक्चर के अंडर आता है। तो 3 टाइप के मैन्युफैक्चरिंग रहते हैं, जॉब प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन एंड मास प्रोडक्शन। ओके, तो अपना प्रिंटर जो है 3D प्रिंटर नॉट यूज फॉर मास प्रोडक्शन, क्योंकि उतना वो कैपेबिलिटी अभी फिलहाल की डेट में नहीं है। सो इट कैन बी यूज एज अ बैच प्रोडक्शन। अगर आपका प्रोडक्ट का साइज छोटा है तो 100 केस में, 50 केस में आप बैच में वो प्रिंट करके निकाल सकते हो, दैट कैन बी यूज। तो मोस्टली प्लांट इंजीनियरिंग के जो पार्ट्स रहेंगे, फिल्टर्स रहेंगे, ये जो भी मार्केट में होते हैं तो 3D प्रिंटेड करके वो सेल आउट होते हैं। ओके, कमर्शियली दिस कैन बी यूज। सो द नेम चेंजेस फ्रॉम रैपिड प्रोटोटाइपिंग टू एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज हो रहा है। और एडिटिव क्यों? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, मटेरियल ऐड होते जा रहा है। सो मटेरियल इज एडेड लेयर बाय लेयर। सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग यानी ये लेथ आप यूज करते हो, CNC मशीन यूज करते हैं, दैट इज सब्सट्रैक्टिव। इसमें क्या करेंगे आप, यू गिव द रॉ मटेरियल एंड फ्रॉम दैट रॉ मटेरियल बाय यूजिंग टूल्स एंड अदर थिंग यू रिमूव द मटेरियल एंड यू क्रिएट द ज्योमेट्री। उससे आप जो डिजायर्ड ज्योमेट्री यू क्रिएट फ्रॉम इट। सो यू आर सब्सट्रैक्टिंग द मटेरियल फ्रॉम a given raw this stock, okay, given stock or raw material, okay, from that you remove the material and you give the geometry। तो इसको क्या बोलते हैं, सब्सट्रैक्टिव टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। और अपना जो है दिस इज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें हम मटेरियल ऐड करते जा रहे हैं। इसमें सब्सट्रैक्ट कुछ भी नहीं है, इसमें क्या हो रहा है, मटेरियल लेयर बाय लेयर ऐड होती है, इसलिए इसका नाम एडिटिव है। एडिटिव देन फॉर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस, सो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ओके, सो टेक्नोलॉजी दैट कैन मेक एनीथिंग। एनीथिंग इसका मतलब क्या है कि इसमें आप जो भी कैड डेटा दोगे दैट कैन बी इजीली मैन्युफैक्चर
if the machine is capable of the size. तो साइज पे भी डिपेंड है, आप अगर बड़ा साइज होगा और आपका मशीन का साइज छोटा रहेगा, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल इन दैट, आप दूसरा मशीन आप चेंज कर सकते हो, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, वो पार्ट मशीन में छोटे छोटे पार्ट्स बना के फिर उसको असेंबल करके ट्रेड में लार्जर साइज। ओके, देन एलिमिनेट्स मेनी कंस्ट्रेंट इम्पोज्ड बाय कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि क्या, इसको ना टूल लगता है ना फिक्चर्स लगेंगे। हाँ, क्योंकि अभी अगर इसको कंपेयर करेंगे हम सीएनसी मशीन से, अभी ये वाला जो मशीन है यहाँ पे दिख रहा है, हाँ वीएमसी मशीन, वर्टिकल मशीन सेंटर, ब्लू कलर का जो दिख रहा है। ओके, सो उससे अगर कंपेयर करेंगे तो इसमें अगर मुझे कोई तो ब्लॉक बनाना है तो मैं क्या करूंगा कि मुझे पहले तो उसका प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग करने के बाद मुझे रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, एक ब्लॉक को पकड़ने के लिए उसको फिक्चर्स बोलते हैं, वर्क होल्डिंग डिवाइस, वो सीक लैंप वो आपको लेना पड़ेगा, तो वो लगाना है। उसके बाद में से क्या करना है, जो भी सपोज उसमें कटिंग है तो फेसिंग करने के लिए कटर अलग अलग है टूल, ड्रिलिंग करना है ड्रिलिंग का अलग टूल, अलग अलग डायमीटर के होल से सपोज 10 का एक रहेगा, 20 का एक रहेगा, 15 रहेगा, हर एक इसका एक टूल मुझे एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। अगर उसमें नहीं हो रहा होगा तो मुझे निकाल के, बोरिंग है, बोरिंग का साइज भी बोरिंग के लिए नहीं यूज होता, तो फिर बोरिंग का सीएनसी मशीन का लगाना पड़ेगा। तो इतना सब कंस्ट्रेंट आता है मैन्युफैक्चरिंग में, अगर हम मशीन से ये कम मशीन से कंपेयर करें। ओके, कास्टिंग से करना है, सपोज ये कास्टिंग है, ये ब्लॉक जो है ना ये कास्टिंग करके निकालना है और फिर उसको मशीन किया और ड्रिल वगैरह अंदर से बोरिंग वगैरह किया, तो ये पार्ट करना होगा तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले तो उसका डिजाइन बनाना पड़ेगा, जो भी है वो कैड मॉडल का डिजाइन बनाना, तो वो डिजाइन बनाने के बाद इसको बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है कि मोल्ड्स बनाने पड़ते हैं। मोल्ड बनाने के लिए मोल्ड का डिजाइन बनाना पड़ेगा, डाई का डिजाइन बनाना पड़ेगा, तो उसका डिजाइन अलग से आया, तो फिर वो एक्स्ट्रा साइज से उसका अलाउंस देके आपको एक डाई डिजाइन बनाना। डाई डिजाइन के बाद अंदर की कैविटी चाहिए, तो उसके लिए मुझे कोर डिजाइन करनी पड़ेगी, तभी कैविटी अंदर की बनेगी उसकी, तो वो कोर डिजाइन आ गया। कोर डिजाइन होने के बाद जहाँ से मैं मेटल कोर करूंगा और कहाँ से मेटल बाहर आएगा, एक साइड से जाना चाहिए, एक साइड से आना, तो गैसेस के अंदर कोर छोटी हो जाएगी, तो वो उसके मुझे डिजाइन में इंक्लूड करने पड़ेंगे। दैट्स गेट्स आर टू बी इंक्लूडेड, रनर और राइजर्स बोलते हैं, तो वो आपको डिजाइन में इंक्लूड करना पड़ता है। तो इतना डिजाइनिंग का पार्ट आता है। वो होने के बाद फिर मुझे वो मशीनिंग करना पड़ेगा, डाया अलग से बनाना पड़ेगी, वो सब कोप एंड ड्रैग रहता है उसमें, तो वो बनाना पड़ेगा। उसके बाद सब बन गया, कोर का एक अलग से बनाना पड़ेगा, फिर बन गया सब पार्ट ऑफ मेटल कोर किया, वो सब बन गया। उसके बाद वो रनर राइजर कट करने पड़ेंगे, कट करने के बाद मुझे लेना पड़ेगा वो, फिर बाद में मशीनिंग जो भी है, ड्रिलिंग करना है, ये करना है, बोरिंग करना है, वो अलग अलग सीएनसी मशीन पे या तो कन्वेंशनल लेथ में भी, रेडियल ड्रिलिंग मशीन में भी वो यूज करके करना पड़ेगा। पर सीएनसी मशीन में मैं सॉरी इसमें एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का मेटल वाला मैं प्रिंटर लूंगा, तो इसका सिर्फ मैं क्या करूंगा, एक डिजाइन कैड मॉडल बनाऊंगा, डायरेक्टली उसमें थ्रेडिंग वीडिंग जो भी है उसको दे दूंगा, होल जहाँ पे वहां दे दूंगा, उसको डायरेक्ट मैं कमांड दूंगा, स्लाइसिंग करूंगा और प्रिंट करूंगा, तो वो वहां से मुझे डायरेक्टली वो विदाउट एनी एडिशनल ऑफ डिजाइनिंग ऑल्सो एंड अदर टूलिंग एंड अदर थिंग्स, वी डोंट रिक्वायर एनीथिंग, जस्ट वो प्रिंटर और आपका डिजाइन, उससे आपका ये प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर क्यों नहीं यूज होता, क्योंकि यहाँ पे इसमें इसकी जो डिमांड रहेगी वो मल्टीपल मास प्रोडक्शन के लिए रहेगी, तो फिर वो वहां पे यूज नहीं होगा प्रिंटर। अगर उसके बैच में रहेगा, सपोज उसका मंथली उसके पास जो भी बना के देने वाला मैन्युफैक्चरर, तो उसको मंथली सपोज 500 ऐसे जॉब आते होंगे या 100 जॉब्स आते होंगे बनाने के, तब वो ये यूज कर सकता है। ओके, पर मोस्टली क्या होता है कि मास प्रोडक्शन के लिए बनते हैं, तो फिर वो चीज के लिए वो अलग होगा। अगर आपका ऑटोमेटिव के पार्ट्स है जो उसकी स्पेसिफिकली उसको रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की, कि उसकी वेट कम होना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ उतनी होनी चाहिए, और उसकी जो एक्यूरेसी है वो उतनी होनी चाहिए जितनी कि कन्वेंशनल और सीएनसी मशीन से अचीव होता है, तो देन एट दैट टाइम यू कैन यूज अ 3D प्रिंटर। ओके, फॉर जॉब एंड वेब, जहाँ पे कंटिन्यूसली डिजाइन चेंजेस आ रहे हैं प्रोडक्ट में और यानी कि चेंज होते जा रहा है, तो वहां पे ये 3D प्रिंटर काम आएगा। अदरवाइज यू कैन ऑलवेज गो फॉर कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो ये समझ में आया। देन लीड्स टू मोर मार्केट अपॉर्चुनिटीज, इसका वही है कि कोई भी फील्ड हो, मेडिकल का रहने दो,
प्रोडक्ट डिजाइनिंग कर रहे हैं, दो एरोस्पेस कर रहे हैं, दो ऑटोमोटिव कर रहे हैं, दो कस्टम कर रहे हैं, दो कोई भी कस्टम आपको खुद को स्टूडेंट को बनाना है, सिंपल प्रिंटर है, उसमें भी ये काम आता है. ओके, so how it works? So the process of joining the materials to make the object from three dimensional data, यानी थ्री डायमेंशनल डेटा यूज करके लेयर बाय लेयर से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग. एंड लेमैन लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, 3D प्रिंटिंग, क्योंकि वो 3D मॉडल प्रिंट करता है. ओके, देन मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स विद वर्चुअली नो ज्योमेट्रिक लिमिटेशन, वही है, टूल्स नहीं लगते और ज्योमेट्रिक लिमिटेशन कितना भी रहने दो वो आप बना सकते हैं. ओके, सो एएम यूजेस एडिटिव प्रोसेस, यानी ऐड करते हुए ये बनाता है. आगे डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग टू डिजाइन. पहले क्या होता था कि वो मैन्युफैक्चर होता होगा तभी मैं वो हिसाब से मुझे डिजाइन करना पड़ता था पहले केस में. बट इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जो आपको डिजाइन करना है वो आपका मैन्युफैक्चर बने. Okay, there no need to think about whether it gets manufactured or not. So any complex shape can be printed by using additive manufacturing. अभी उसमें क्या लिमिटेशन आ सकते हैं, डिपेंड. अभी सपोज आपको कलर कॉम्बिनेशन में चाहिए या मेटल का जो चाहिए, इसने बोला कि भाई ये मेटल में चाहिए, अगर वो सपोर्ट नहीं करता होगा तो फिर वो नहीं होगा. अगर वो सपोर्ट करता होगा तो वो उसमें मैन्युफैक्चर हो जाए. शेप और साइज में कुछ भी डिफरेंस है, जो उसकी कैपेबिलिटी के अंडर आता होगा तो वो प्रिंट हो सकता है. ओके, तो यहाँ पे देखो इमेज में वही दिखा है. सपोज ये ऐसा ब्लॉक बनाना होगा तो मुझे पहले ब्लैंक देना पड़ेगा, सीएनसी को क्लैंप लगाना पड़ेगा, उसके बाद मशीनिंग पूरी करनी पड़ेगी, मिल कटर वगैरह सब लगेंगे, ड्रिल का अलग कटर, फिर एक साइड XY प्लेन पे होगा तो फिर से मुझे उसको रोटेट करके अलग से, और फिर से उसको क्या है आपका लोडिंग और अनलोडिंग फिर से करना पड़ेगा, जॉब को फिर से सेट करना पड़ेगा, फिर से इधर करना नहीं होता होगा तो दूसरे मशीन पे लगाना पड़ेगा, उसको मशीनिंग करना. तो ये सब चीजें होती है. पर ये केस में क्या होगा, आपका एक ही सेटिंग में पूरा प्रिंट करके निकलेगा. तो ये हमें अभी ये जो तीन एक्सपेरिमेंट करने हैं. तो ऑल दिस थ्री एक्सपेरिमेंट्स इज टू एक्सपेरिमेंट्स आर शोन इन हियर, क्योंकि हमारा जो है दो एक्सपेरिमेंट प्रिंटिंग पे है और एक एक्सपेरिमेंट स्कैनिंग पे. ओके, तो फर्स्ट फॉर टुडेज एक्सपेरिमेंट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट 3D CAD मॉडल, कैसे डिजाइन, बेसिक एक सिंपल मॉडल लेना है, उसको कैसे CAD आपने बनाना. तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कटिया करके एक सॉफ्टवेयर है, ओपन करो आप, पीसी ऑन करो पहले. तो कटिया सॉफ्टवेयर वी आर गोइंग टू यूज फॉर दिस. ओके, ओके, तो इसके लिए देखो, ध्यान दो, चालू कर दो और इधर देखो बस, उसको कैसे चालू है वो देखो. 3D CAD मॉडल हमें बनाना है, उसके बाद उसको सेव करना है .stl फाइल. अभी ये क्या है, सो जो सबसे पहले इन्वेंट हुआ था स्टीरियोलिथोग्राफी apparatus, वही अब तक चल रहा है. सो दिस इज द जेनरिक फाइल एक्सटेंशन फॉर योर मॉडल. जो भी आप CAD मॉडल बनाते हो उसका जेनरिक, यानी कोई भी प्रिंटर दुनिया का रहने दो, कोई भी टेक्नोलॉजी का रहने दो, FDM रहने दो, पॉलीजेट रहने दो, मेटल रहने दो, ये रहने दो, उसमें ये सब, इसमें ये स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर में ये ओपन होता है. दिस सपोर्ट्स each and every slicing software and printer available in the world. Okay, तो इसको क्या बोलते हैं, STL फाइल, ये स्टीरियोलिथोग्राफी फाइल. जैसे कि आपकी डॉक्यूमेंट की फाइल रहती है DOC फाइल, वैसे वो STL फाइल में सेव करना. अपना भी हम जो दूसरा स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर भी यूज करने वाले हैं फॉर दिस थर्ड स्टेज, इसमें क्या होता है कि आपका जो भी डेटा रहेगा उसको स्लाइस करेगा. तो स्लाइस करने का थिकनेस जो है डिपेंड्स अपॉन द एक्यूरेसी ऑफ योर मशीन. मशीन में कितनी कैपेबिलिटी है वो हिसाब से वो स्लाइस करेगा. ओके, आप स्ट्रैटसिस F170 अपना जो प्रिंटर है उसकी कैपेबिलिटी 100 माइक्रॉन से लेके 400 माइक्रॉन. ओके, और वो जो पॉलीजेट वाला दूसरा जो है प्रिंटर, उसका 14 माइक्रॉन का, यानी 14 इतना फाइन आपको इससे मिलता है. यानी उसमें आपको लाइंस भी नहीं, ज्वाइनिंग की जो लाइन दिखते वो भी नहीं दिखाई देंगे. आप अभी ये होने के बाद हम देखने वाले हैं, आपको वीडियो दिखाता हूँ, फिर एक्चुअल प्रिंटर देखेंगे हम दोनों भी. ओके, और उसके बाद में आगे प्रैक्टिकल परफॉर्म करना. तो इसमें क्या होता है एक्चुअल में कि जो CAD डेटा है उसको हम स्लाइस करते हैं नंबर ऑफ लेयर्स में, और ये क्या आपका आउटपुट देगा, आउटपुट ऑफ टूल पाथ, यानी कि उसकी मूवमेंट जो होने वाले X, Y और Z में. तो XY मूवमेंट जो होता है वो हेड का होता है, X और Y मूवमेंट हेड का मूवमेंट होगा,
और z का मोमेंट जो है बेड प्लेटफॉर्म जो रहता है, बिल्ड प्लेटफॉर्म, दैट विल बी द z एक्सिस मोमेंट. तो x y एंड z एक्सिस विल बी द बिल्ड प्लेटफॉर्म. उसकी मोमेंट जो मिले वो z एक्सिस. तो ये टूल पाथ आपको क्रिएट करके देता है, आपको कुछ प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये आपको खुद से बना के देगा फाइल. दैट फाइल इज गिवन टू द 3D प्रिंटर एंड 3D प्रिंटर विल एग्जीक्यूट द प्रिंट. तो हमें क्या करना है, आज कैड मॉडलिंग सीखना है और HTML में सेव करना है उसको. अगले प्रैक्टिकल में आपको स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर यूज करना है, स्लाइसिंग करना है उसकी. तो उसमें क्या क्या देना पड़ता है कि मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं, प्रिंटर कौन सा यूज कर रहे हैं पहले, उसके बाद मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं, उसमें उसको फिर वही साइज में प्रिंट करने वाले 1:1 या उसको हाफ स्केल में प्रिंट करना है या तो डबल करने वाले, तो वो हम देना है. उसको ओरिएंटेशन कैसे रखना है, ओके, तो स्लाइस कितनी कौन से थिकनेस आपको लेनी है, वॉल्यूम कितना रखना है, तो दैट हैज टू गिवन बाय द यूजर. ओके, तो वो हम देखेंगे उसमें. और वो होने के बाद वी विल परफॉर्म द प्रिंटिंग. तो प्रिंटिंग में कैसे क्या रहता है, उसको यूज कैसे करना है, ऑपरेटिंग कैसे रहती है, एसओपी क्या है, वो हम प्रैक्टिकल सेकंड प्रैक्टिकल में हम परफॉर्म करेंगे प्रिंटिंग के साथ. ओके, देन द थर्ड प्रैक्टिकल विल बी, कोई तो मॉडल लेंगे हम और मॉडल को क्या करेंगे, स्कैन करेंगे. स्कैन क्या करता है, उसमें लेजर रहता है. ओके, तो दैट लेजर will impart on the surface of that object whichever you are going to scan, and that will reflect and create a point cloud data. points में वो data create करता है, जो भी reflect हो रहा है surface पे वो आके capture करता है और आपका data जो आएगा that will be in the point cloud. then वो point clouds जो points है उसको join करने का काम सॉफ्टवेयर, और तीसरा सॉफ्टवेयर जो हम यूज कर रहे हैं that is a VZ reverse. उसमें क्या है, points को join करता है और surface create करता है. तो वो हम तीसरे प्रैक्टिकल में परफॉर्म करना है. पहले में कैड मॉडलिंग, सेकंड में स्लाइसिंग. ओके, उसके लिए ग्रैब कैड सॉफ्टवेयर है जो दोनों भी प्रिंटर को सपोर्ट करता है. तो प्रिंटिंग हम करने वाले सिर्फ वो FDM पे, वो वाले इसके सिर्फ आपको मैं कैसे करता है, कैसा यूज करना है वो बता दूंगा बड़े प्रिंटर पे. छोटे प्रिंटर पे अपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे. ओके, तो अपने पास जो नहीं है प्रिंटर, उसका मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ. तो स्पीकर का बटन ऑन, स्पीकर ले लेना. जो अपने पास प्रिंटर नहीं अवेलेबल, अभी दो प्रिंटर की टेक्नोलॉजी अपने पास है, एक FDM है और एक है पॉलीजेट. ओके, तो वो तो प्रैक्टिकल के समय आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे यूज होता है. तो अपने पास जो नहीं है, मेटल वाला नहीं है, ये देखो SLM, दिस वन इज नॉट अवेलेबल विद अस. तो देखो ये ट्रॉली के साथ इसके अंदर जाता है. हाँ, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर. अब इसमें देखो HTML फाइल उसने लिया इम्पेलर, तो ये पार्ट यहाँ पे कैड मॉडल का यहाँ पे आता है. तो उसको मल्टीपल जितने चाहिए वो डुप्लीकेट करेगा, उसको स्लाइसिंग करके लेगा वो. ये 300 बाय 300 का बेड साइज, 300 बाय 300 बाय 300. ओके, तो स्लाइसिंग करने का ये देखो यहाँ पे ये लेजर है, लेजर इंपार्ट हो रहा है. ये पाउडर है, ये लेवलिंग ब्लेड है. तो एक लेयर होने के बाद फिर से नया पाउडर आता है. दो चेम्बर रहते, चेम्बर अभी उसमें जो सॉलिड डाला और एक साइड से उसमें क्या रहता है कि सप्लाई ऊपर आता है, तो आपका जो बनता हुआ पार्ट नीचे तक जो बनते जाएगा लेयर, आपका बेड नीचे जाएगा और सप्लाई वाला जो है ऊपर आएगा. तो लेवलिंग ब्लेड जो फ्रेश जैसा एक लेयर बनेगी तो नया स्प्रेड करके लेयर लेके आएगा पाउडर. और जो भी पाउडर रह जाएगी दैट कैन बी अगेन यूज्ड फॉर प्रिंटिंग. ओके, एल्यूमिनियम की पाउडर, मेटल की, एल्यूमिनियम वो जो ऑटोमोटिव और एरोस्पेस के एप्लीकेशन के लिए काम आती है. एसेट जो है उसमें दो टाइप के एसेट रहते हैं. इंडस्ट्रियल एसेट है, वो आपके इंडस्ट्रियल बनाने इम्प्लांट के लिए 316 ये ग्रेड का मटेरियल यूज होता है. वो वाट फ्रेम जो है इम्प्लांट्स बनाने की बाद टाइटेनियम आपके इम्प्लांट, ऐसे डिपेंड अपॉन द एप्लीकेशन यू हैव टू यूज दैट. हर एक मटेरियल की अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट रहती है. तो जैसे आप मटेरियल सिलेक्ट करोगे वैसे हिसाब से लेजर की इंटेंसिटी आई होती है. ये पार्ट बन गया, देखो उसके ऊपर हो गया कुछ, तो ये वैक्यूम से. तो इसके लिए मास्क और ग्लव्स पहनना बहुत जरूरी है.
ये पूरा क्लीनिंग अभी उसको निकालने के लिए जहाँ पे वो बेड पे बना हुआ है, तो फॉर दैट वी रिक्वायर्ड अ वायर ईडीएम मशीन, सीएनसी मशीन ही रहती है, अपने बाल जितना एक कॉपर वायर रहेगी, वो कॉपर वायर से नीचे वो थोड़ा कट हो जाता है और फिर आपका पार्ट आपको मिल जाता है। ओके, फिर जो बाकी की थोड़ी बहुत मशीन जो रहेगी उसकी फिनिशिंग के लिए वो करनी पड़ती है आपको फिर से, पर बाकी का एक टाइम को आपको इतने मल्टीपल जॉब्स मिल जाएंगे विद सेम स्ट्रेंथ एंड एक्यूरेसी। ओके, तो ये मेटल वाला। अभी जो सपोर्ट्स क्रिएट हो गए देखो, ये उसको मशीन करके निकालना है, बीच बीच में उसको मशीन करके निकालना है। ये अभी पूरा वो क्लीन करके रखा है इसलिए हाथ रखा है, इसलिए हाथ पर तो ऐसे पार्ट बना ये ब्लेड है, ये एग्जांपल से उसको टाइटेनियम का है, ये सेंटर एलिमेंट है, हीट एक्सचेंजर करके होगा, प्लांट कोबॉल्ट ग्रुप में होता है, डेंटल में भी होता है, ये एल्यूमिनियम का अभी जो इम्पेलर उसने बनाया, ऐसे मोस्ट मल्टीपल एप्लीकेशन गिन नहीं सकते। ये हो गया मेटल का। उसके बाद देखो सेम कंसेप्ट रहेगा, सेम वेट रहेगा, पूरा रहेगा, और लेजर की इंटेंसिटी कम रहेगी। इसको बोलते हैं एसएलएस। इसमें आपको स्पार्क में नहीं दिखाई दे रहा, उसमें SLS is an additive manufacturing technology that uses powdered nylon 11, nylon 12, and PEEK materials. पॉलीमर में Parts नाइलॉन 6, नाइलॉन 12, durable, ABS, chemical resistant, making तो SLS ये a वाले natural मटेरियल choice, producing production इसकी parts फिनिशिंग without the expense of tooling. कार्बन फाइबर जो कार्बन फाइबर इसमें नहीं होता, एफडीएम में आप thin cross sections or layers. इसमें क्या रहता है कि The पूरा data कार्बन is फाइबर then नहीं यूज transferred to the SLS करते, additive प्लेट रहेगा manufacturing एबीएस प्लस अपना जो प्रिंट है वो सब begins to create the first layer. ये 90% After a leveling roller और spreads a thin layer of powdered कार्बन material फाइबर across the powder bed. उसका नाम है The एबीएस laser traces the cross section on the material. 10% कार्बन फाइबर। As the laser scans the surface, the material is heated and fused together. तो ये 5 मीटर अपना पॉलीमर का जो मशीन 5 मीटर छोड़ रखता है, एबीएस CF10, एबीएस प्लेन, एएस से जो मैट में Once रहेगा, a single layer is उसके complete, बाद the पॉलीइलेक्ट्रिक powder bed is lowered PLA to make room for the next और layer. इलेक्ट्रोमर Raw material is introduced from the powder cartridge and rolled out smoothly, थर्मोप्लास्टिक while unused material is recycled. तो वो देखो ऐसे चेंबर रहते हैं पाउडर कार्ट्रिज के, एक साइड से वो ये ऊपर जाएगा ये वाला चीज, हाँ, और ये प्लेटफॉर्म जो है आपका बेड का वो नीचे नीचे आएगा, जैसे एक एक लेयर बनते जाएगा और जैसे वो माइक्रोवेव। तो इसकी कितनी कैपेसिटी रहती है देखो, मेटल्स जो आता है 10 माइक्रोन्स की भी आपको लेयर एक्यूरेसी मिलती है। 1 माइक्रोन में कितना देता है? 1 माइक्रोन म्हणजे किती असतं? माइक्रोन में यानी अगर आपकी स्केल लिए जाए उसमें का एक डिवीजन रहता है, एक सिंगल डिवीजन आपली स्केल जैसी पडते त्याच्यावरचं एक डिवीजन छोटी, तिथे 1000 तुकडे केले तुम्ही, फाईन 1000 केले, त्यातलं एक घेतलं म्हणजे 1 मायक्रोन, हाँ 1000 तुकडे 10⁻⁶ और 10 माइक्रोन की वैसे 10 ऐड कर लो तो 10 माइक्रोन। अपनी कैपेसिटी है 14 माइक्रोन की, ये वाली मशीन बड़ी वाली जो मशीन है वहाँ पे दिखा रहा हूँ वो मशीन की, और दूसरा जो है 127 माइक्रोन मिनिमम है से लेके 3.5 ये 14 माइक्रोन की पॉलीजेट जो जिसमें आपको लेयर्स दिखाई नहीं देंगे, स्मूथ दिखेगा सब, जैसे ये आया ये मोल्ड से बना है, ये वाला जो है ना मोल्ड से, इसमें लेयर भी कुछ नहीं दिखता, मोल्ड का है, मोल्डिंग से बना है। अपना जो है वैसे ऐसी क्वालिटी में करेंगे, और जो एफडीएम है उसमें थोड़ा आपको लाइंस दिखेगी। ओके, आगे बीच में building layer upon layer, देखो ये ऐसा part is compressed बनता है, and eliminates the need for support structure. और देखो ये ऐसा Now being निकालते redesigned हैं, with SLS ग्लव्स पहनना जरूरी है, वो cost-effective ऐसा काम integrated करता है। structures.
Solid Concepts manufactures parts utilizing nylon with property-enhancing fillers to create rugged SLS parts suitable ये for a variety पॉलीमर of के prototype and production इसमें बहुत सारी कंपनी के applications. मशीन Typical आते हैं uses for SLS स्टेटस include का भी आता है tools and उनमें fixtures, वो नेम देते हैं fuel उसका नाम tanks, देते हैं plate-plated components for unmanned aerial vehicles, automotive तो दैट इज design, सेलेक्टिव air ऑब्डक्शन ducts, फ्यूजन architectural models, and artistic सेम ही है sculptures. टेक्नोलॉजी ईओएस का एक आता है सॉलिड सर्फेस का मशीन 3D सिस्टम्स का एक मशीन आता है बहुत सारे मशीन आते हैं और एक है देखो ये हो गया आपको सबसे पहला वाला जो बना था वो टेक्नोलॉजी बताता हूँ पहले Stereolithography family of 3D system. It has a maximum build area sound quality or 1 mm. वेट साइज बता रहा है एक कैड मॉडल है देखो वन कार का Since the build तो उसने क्या किया उसको स्लाइड किया the model is now ready to ये देखो ये ऐसा बेड known as the photocure. उसको होल से टैंक के नीचे पूरा लिक्विड रेजिन भरा हुआ है और इस पे क्या होगा लेवलिंग ब्लेड से एक लेयर पहला फ्लैट कर लेगा उस पे बेड पे उसके बाद लेजर घूमेगा इसमें ब्लू रे वाला यूज किया है लेजर तो उतना सॉलिडिफाई हो जाता है यूवी से और उसके बाद फिर से वो प्लेटफॉर्म उतने ही माइक्रोन से नीचे जाएगा जितना उसको लेयर आके और फिर से दूसरा लेयर तीसरा लेयर चौथा लेयर क्रॉस सेक्शन वाइज वो बनते जाएगा और फिर सब बनने के बाद आपको ऊपर लेके आना है बेड और आपको प्रोडक्ट निकालना है जो भी सपोर्ट्स है वो सपोर्ट्स निकालना सपोर्ट्स यानी कि क्या ओवरहैंगिंग स्ट्रक्चर जो रहेंगे आपके मॉडल में वो वहाँ पे सपोर्ट बनाना यानी कि सपोज ऐसा मुझे अभी क्या करना है कि ऐसा कुछ तो शेप है कैंटिलीवर शेप है तो इस ऐसा बनाना है तो मुझे नीचे सपोर्ट देना पड़ेगा तभी ये बन सकता है मतलब गिर जाएगा तो बनने के बाद आपको फिर सपोर्ट निकालेंगे जैसे कि अभी स्लैब डालना होगा तो देखो बाम्बू लगाते हैं उसको ये रखते फिर स्लैब डालते फिर सूखने के बाद वो निकाल देते so that acts as a support वैसे ही इसमें भी सपोर्ट्स जनरेट होते हैं Epoxy acrylate liquid resin, known as LV Grow, so that it rests तो देखो 3,000 लिक्विड कितना आ गया ऊपर mm below the surface. The ultraviolet laser ऐसा लेजर इम्पोर्टेंट होता है The laser itself has 100 XY moment watts of laser power करेगा available to head it and has a और build Z out moment of just 0.075 millimeters, meaning that the solidification process is very low. बनेगा Ebony पूरा blade फिर लेवलिंग ब्लेड से to ensure that the new फिर से level नया is लेवल recoated होगा with a layer of liquid resin. The laser is repeated layer by layer से until the model is ऐसा लेयर complete. पर लेयर बनेगा फिर बनने के बाद Up and out of the पूरा resin पार्ट to allow the करना है तो उसको क्योर करना है आपको Upon completion of the water model, jet it must be removed from the machine and post-processing of the model. पोस्ट प्रोसेसिंग करना पड़ेगा First, any excess liquid ये देखो ये or सपोर्ट से structure are removed. सपोर्ट निकालने The पड़ेगा part is cleaned using isopropyl alcohol. आइसोप्रोपिलीन क्या है अपना जो दूसरा मशीन है ना Cleaned using उसको air and water to remove the solvent. क्लीन करना The part is then placed और in an water jet से ultraviolet oven clean to करके cure and fully solidify the part. तो Finally, ये the model यूविल है is इसमें sanded down with an रख के उसको ultrafine ये sandpaper to produce a smooth surface finish. इतनी अच्छी नहीं है प्रिंट Stereolithography is commonly used for creating small to medium-sized concept models or तो ये prototypes for ऐसे उससे aerodynamic testing and एसएल as well केबल as parts with स्टीरियोलिथोग्राफी such as those used. और एक मेटल में आता है एक लास्ट देख के अपन जो अपने पास नहीं है इसलिए दिखा रहा हूँ ये डायरेक्ट है इसमें क्या होता है देखो ये 5 एक्सिस मशीन सीएनसी मशीन यूज होता है इसमें जिसमें स्पिंडल निकाल देते हैं और ये वाला अटैचमेंट लगा देते हैं अभी तक कमर्शियलाइज नहीं हुआ सो दिस कांसेप्ट इसमें क्या है ट्यूब्स में से मेटल आ रहा है पाउडर और लेजर इसमें से डायरेक्ट उस पे मेटल पे आ रहा है और डायरेक्टली वो मेल्ट हो जा रहा है प्रिंट होते जा रहा है एफडीएम जैसे इसकी फिनिशिंग ऐसे लोग देखती हैं करना पड़ता है एक्स वाई जेड और टेबल मूवमेंट हो रहा है इसका रोटिंग मोशन का एक एक्सिस 12 होता है
तो अभी क्या करते हैं हम, FDM जो है ये अपना प्रिंटर देखते, और पॉलीजेट का एक प्रिंटर है, वो अपना प्रिंटर यहाँ पे, वो मैं दिखाऊंगा आपको, और एक्चुअल अगले उसमें परफॉर्म करके भी देखेंगे एक्चुअल कैसे वर्क होता है। ठीक है, चलो।
चार्जर लेके आए। अब पहला वाला हम चालू करेंगे, दैट इज कैड मॉडलिंग। कैड मॉडलिंग अभी स्टार्ट करेंगे हम। सो फॉर दैट यू हैव टू डेस्कटॉप पे जाना है, यू हैव टू गो टू डेस्कटॉप, राइट क्लिक ऑन दिस CATIA V5 R16 एंड क्लिक ओवर ओपन। कोई तो इसमें नहीं हो, वहां से उठ के यहाँ पे आ सकते। DDS CATIA R16, CATIA R16। हाँ तो फिर इधर आ जाओ, ये दो इसमें है, इसमें एक कोई तो इसमें और एक इसमें, दो पीसी में नहीं, इधर आके बैठो दो पीसी और ड्रोन इधर दे दो बस। बैग साइड लेते हो, ड्रोन से बैग देख लो। नीचे हो गया ऊपर। आपको इजी के लिए भी रहेगा ये, दो टॉपिक है इस पे, दैट इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। उसमें से हम आइसोमेट्रिक व्यू का जो है वो लेने वाले हैं। आपकी ब्रांच कौन सी है? सिंपल है। इसका फोटो लो, ये वाला पार्ट हमें डालना है। ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है यहाँ का, दिस वन इज द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जिसमें देखो उसका फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है और राइट हैंड साइड व्यू दिए हैं।
और ये आइसोमेट्रिक व्यू है. The direction of x is given in this direction, so this will be your front view, this will be the top view, and right hand side view दिख रहा है उसका, तो राइट साइड का लेफ्ट में चला जाता है because we are using first angle projection method. ये वाला पार्ट हमें यहाँ पे क्रिएट करना है 3D में. ओके, सो फॉर दैट ध्यान दो, इधर फोटो लिया ना सबने, वो जरूरी सामने रहना चाहिए जब हम बनाएंगे, डायमेंशन चेक करने के लिए कैसा क्या है. ओके, so this software is by Dassault system, developed by Dassault system. Dassault system जो थी ये पहले फाइटर प्लेन्स के पार्ट्स डिजाइनिंग के लिए यूज होती थी. मैजेक करके एक रशियन फाइटर प्लेन्स है, उसके लिए पहले स्टार्ट किया था इन्होंने डिजाइनिंग करना. बाद में कमर्शलाइज सॉफ्टवेयर आए इनके, कटिया आया, कटिया के बाद सॉलिड वर्क्स आया, बहुत सारे इनके सॉफ्टवेयर है, सॉलिड एज है. ओके, सो दैट डेवलप बाय Dassault system. Dassault system की कंपनी अपने इंजोडी में भी है, पुणे में. वहाँ पे ये डेवलपर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स हायर करते हैं और सीएस स्टूडेंट्स हायर करते हैं. ओके, तो उसमें से इनका ये जो कटिया सॉफ्टवेयर है, दिस इज मोस्टली यूज्ड फॉर टू टाइप ऑफ वर्क. दैट इज फॉर सरफेस मॉडलिंग, यानी सरफेस सपोज प्रोडक्ट डिजाइनिंग करना है या तो कार डिजाइनिंग करना है, तो उसका जो रहेगा सरफेसिंग का काम, वो ये सॉफ्टवेयर पे मोस्टली यूज होता है. और मोल्ड डिजाइनिंग का काम इससे होता है. ओके, बाकी की भी है इसमें वर्क बेंचेस. तो स्टार्ट में जब जाओगे तो आपको देखो ये अलग अलग वर्क बेंचेस यू कैन सी ओवर हियर. सो इन दैट मैकेनिकल डिजाइन यू हैव टू गो इन दैट एंड सिलेक्ट द पार्ट डिजाइन, बिकॉज वी आर डिजाइनिंग अ पार्ट. एक पार्ट बना रहे हैं ना, तो उसके अंदर हमें ये बनाना है, असेंबली वगैरह सभी है देखो इसमें. ओके, तो यू हैव टू यूज ओनली in your syllabus your only part design. So click over this part design. Start में जाके मैकेनिकल में जाके part design. Okay, now you can see this interface. See, interface is called as part modeling interface. ये जो स्क्रीन दिख रही है इसको क्या बोलते हैं, इंटरफेस को पार्ट मॉडलिंग 3D एनवायरनमेंट भी बोलते हैं और पार्ट मॉडलिंग इंटरफेस भी बोलते हैं. तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है, दिस आर द प्लेन्स. तो ये कौन सा एक्स वाई प्लेन है, ये वाई जेड है, ये जेड एक्स है. तो क्या ये क्या रहता है कि एक्स और वाई एक्सिस आया तो वो एक्स वाई प्लेन है, वाई और जेड आया तो वाई और जेड प्लेन है, और जेड और एक्स आया तो जेड एक्स प्लेन. ओके, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये देखो प्लस किया, इसको प्लस किया 2 बार, तो यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन. इसको क्या बोलते हैं, ये साइड का जो पार्ट है, एक बार ही क्लिक करना है, उन्हें तो मल्टीपल ओपन है, कभी टाइम लगेगा, इसलिए राइट क्लिक करके ओपन करना है बस, तो एक इसमें चालू होगा. तो ये देखो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नेम एज अ पार्ट ट्री. पार्ट ट्री बोलते हैं. इसका मतलब क्या है कि जो भी आप कमांड यूज करते जाओगे दैट कम्स अंडर दिस ट्री. जो भी कमांड यूज किया आपने वहां पे सेव होते जाएगा. तो आप क्या कर सकते हो कि यू कैन गो बैक एंड यू कैन एडिट इफ यू रिक्वायर. अगर डायमेंशन गलत दे दिया या कमांड कुछ गलत हो गई, क्या होगा, तो आप ये यहाँ से जाके आप उसको चेंज कर सकते हो. यू कैन अल्टर दैट कमांड. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ पार्ट ट्री. देन कभी भी इंटरफेस चालू करने के बाद देखो कोई भी बच्चे ऐसा निकाल के रखते हैं ऐसे कमांड से, जिसको जैसा लगता है वो करते हैं, कभी कभी बंद कर देते हैं. तो ये ऐसा कभी कभार चला गया तो हम ढूंढते बैठेंगे भाई कमांड का कमांड. तो क्या करना है, कभी भी चालू किया तो यहाँ पे आना है आपको, DDS कटिया लिखा है ना, राइट क्लिक करना है उस पर, राइट क्लिक ओवर दैट एंड गो डाउन एंड गो टू कस्टमाइज. गो टू कस्टमाइज. तो अभी कस्टमाइज के अंदर क्या होगा, देखो एक विंडो आएगी, यहाँ पे होगी कस्टमाइज विंडो. इन दैट यू हैव टू क्लिक ओवर टूल बार्स. टूल बार पे जाके क्लिक करना, राइट क्लिक ओवर दिस DDS कटिया, देन वन विंडो विल अपीयर. ये यहाँ पे विंडो, कस्टमाइज विंडो में टूल बार के टैब पे क्लिक करना है. देन क्लिक ओवर रिस्टोर ऑल कंटेंट्स, सिलेक्ट ओके, रिस्टोर पोजीशन, सिलेक्ट ओके. सो दिस विल ये काम क्या कर रहा है कि जो भी कंटेंट
चला गया है बाय डिफॉल्ट कंटेंट created by this software, default जो setting है that will be resetted again, and the default position also gets retained. दूसरा क्या है? um, then close this. तो अभी क्या होगा कि जो भी डिफॉल्ट सेटिंग से जो भी टास्क बार थे वो चले गए होंगे, वो आ जाएंगे, उसके बाद जगह पे भी आ जाएंगे। ओके, जो भी गए वो भी आ जाएंगे और जगह पे भी आ जाएंगे। नाउ इसमें हमें क्या क्या यूज करना है, देखो ये आप मत करो, सिर्फ मैं बता रहा हूँ। तो ये वाला टास्क बार आपको यूज करना है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ व्यू टास्क बार। उसके बाद ये वाला एक है, ये सॉलिड टास्क बार है, ये स्केच टास्क बार है। ओके, उसके बाद ये डायमेंशन वाला टास्क बार है, ये यूज होता है। प्लेन्स वाला एक टास्क बार यूज होता है मोस्टली, और ये ऑपरेशन टास्क बार ये एक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मेशन टास्क बार ये एक, और ये ऑपरेशन वाला टास्क बार। ठीक है, ये वाला इतने टास्क बार की कमांड्स आपके काम में आने होंगे। बाकी इसमें जो भी है ये मोस्टली सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है, जो मटेरियल डिफाइन करते हैं और जो रियलिस्टिक प्रोडक्ट डिजाइनिंग करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, उनको कुछ थोड़े कमांड्स पढ़ते जाते हैं। फिर से मैं रीसेट कर देता हूँ इसको। और भी टास्क बार यहाँ से आप ले सकते हो, यहाँ पे और भी है, पर ये बाय डिफॉल्ट अभी सिलेक्टेड है। उसको पोजीशन जगह पे सब चलेगा। अभी क्या करते हैं हम, डायग्राम पे हमारे आते हैं। तो देखो ये डायरेक्शन ऑफ एक्स यहाँ पे दिया है। अभी कभी भी ऑब्जेक्ट बनाते समय आपको डिसाइड करना है कि उसका प्लेन पहले कौन सा है और कहाँ से आप स्टार्ट करने वाले हो, और आपको कितने स्केच बनाने पड़ेंगे वो बनाने के लिए, वो पार्ट बनने के लिए। तो अभी देखो यहाँ पे अगर बनाना पड़ेगा मुझे, तो देखो तो यहाँ पे देखो ये ऐसा एल शेप जो दिख रहा है, ये एल शेप बना सकता हूं मैं। ओके, एल शेप पूरा, और उसको बाद में वॉल्यूम दे सकता हूं, यानी वो ऐसा पूरा ऐसा बन जाए, एल शेप में बन जाएगा पूरा। उसके बाद में ये एक स्केच हो गया। दूसरा स्केच क्या है, ये ऐसा जो अंडरकट है, उसका जो स्लॉट है, अंडरकट स्लॉट, वो शेप बनाना है 60 डिग्री एंगल, जो भी एंगल दिया है वो एंगल में, और उसको बाद में मुझे वो मटेरियल उसमें से रिमूव करना है। पहला क्या किया मैंने, प्लेन बना के एक सरफेस बना के वॉल्यूम दे दिया, दूसरा एक स्केच बना के उसमें से मटेरियल निकाल दिया। तीसरा क्या है, ये और एक ये रिब है, सपोर्टिंग रिब इसको बोलते हैं। तो ये आपको एक बना के उसको में भी आपको वॉल्यूम देना है। ओके, और ये साइड के जो दो है, ये ऑपरेशन टास्क बार में के कमांड्स, चैम्फर कमांड यूज करके आप ये क्रिएट कर सकते हो। रेडियस रहेगा तो रेडियस क्रिएट सकते हो। अभी चैम्फर है, चपटा है, तो चपटा वाला कमांड यूज करके आपको चैम्फर बोलते हैं उसको, तो वो वाला यूज करके आपको ये बनाना है। तो कितने स्केच में बनेगा ये, 1, ये 2 और ये 3 स्केच में बनेगा, और ये ऑपरेशन करके ये भी कंप्यूटर में। ओके, तो 3 स्केच हमें बनाने पड़ेंगे, और उसको फिर वॉल्यूम देके और वॉल्यूम निकाल के हमें ये मॉडल बन जाएगा। ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, दैट इज फ्रंट व्यू जो दिख रहा है उसको, दिस इज द ऑब्जर्व डायरेक्शन, जो एरो दिया है वो। तो हम एल शेप बनाएंगे। दिस इज 100 बाय 75, 100 बाय 75 का एल शेप बनाएंगे। उसकी थिकनेस कितनी दी है, देखो 22 दिए एक साइड को, और एक साइड को कितनी दी है, 15 है। जो हॉरिजॉन्टल वाला है वो 22 है उसकी हाइट, और इसकी जो थिकनेस है दैट इज 15 है। ओके, तो कभी भी क्या रहता है, ये इसमें ये लेंथ रहती है, ये हाइट रहती है, और ये विड्थ रहती है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन इज मेंशन इन दैट प्रॉब्लम। ओके, वो हिसाब से हमें देखना है। ऑब्जर्वर कैसे देख रहा है वो हिसाब से आपको उसको कंसीडर करना है, कौन सी लेंथ है, कौन सी हाइट है, कौन सी विड्थ है। 3 डायमेंशन रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 3D ऑब्जेक्ट। 3 डायमेंशन यू कैन सी एट अ टाइम, इसलिए उसका नाम है आइसोमेट्रिक व्यू विद अ ट्रू स्केल, यानी जो एक ही डायरेक्शन में आपको तीनों डायमेंशन दिखेंगे वो ऑब्जेक्ट के, उसको क्या बोलते हैं, आइसो। और तीनों डायमेंशन आपको एक ही टाइम को दिखेंगे, इसलिए विद अ ट्रू स्केल दिखेंगे, इसलिए उसको आइसोमेट्रिक
व्यू बोलते हैं। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन भी रहता है जिसमें कि क्या आपका जो डायमेंशन रिड्यूस हो जाते हैं 0.8 से, वो आपके सिलेबस में इजी जब आप सीखोगे, लास्ट का टॉपिक है, दैट विल बी ऑन दैट आइसोमेट्रिक व्यू एंड आइसोमेट्रिक डिफरेंस क्या रहता है वर्जन में, वो आ जाएगा। इधर का जो ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन यानी कि ये 3D में है तो ये 2 डायमेंशन में लिया है। ये फ्रंट व्यू में देखो क्या आ रहा है, लेंथ आ रही है और हाइट आ रही है। टॉप व्यू में क्या आ रहा है, लेंथ और उसकी विड्थ आ रही है, और साइड व्यू में क्या आ रहा है, उसकी विड्थ और हाइट आ रही है। ओके, तो ये सब आपको ग्राफिक्स में पढ़ाया जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे कैसे बनाएंगे। तो ये प्लेन कौन सा है, देखो ऐसा वाला प्लेन है, तो इसमें प्लेन कौन सा है वैसा दिख रहा, ये वाला लिया तो वैसा बनेगा वो डायरेक्शन, बराबर। तो ये कौन सा प्लेन है, YZ, तो सिलेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी। अभी एक सॉफ्टवेयर में कैसा है, कौन सा भी कमांड यूज करोगे तो जब वो एक्टिव होगा इट विल टर्न इनटू ऑरेंज कलर। ओके, कुछ भी सिलेक्ट होगा वो ऑरेंज कलर में होगा, उससे आपको समझ लेना है कि वो एक्टिव है क्या नहीं। ओके, देन यू हैव टू गो टू दिस कमांड, पेपर एंड पेंसिल जैसा दिख रहा है, सो सिलेक्ट ऑन दैट स्केच। स्केच पे जैसे आप सिलेक्ट करोगे यू विल मूव फ्रॉम द 3D वर्कबेंच टू योर स्केचर वर्कबेंच, जिसमें हम 2D बनाने वाले हैं। ओके, करो क्या है, YZ प्लेन लेके स्केचर में चले जाओ। स्केच देखो यहाँ पे ये लिया, उसके बाद पेपर और पेंसिल जैसा है, देखो इधर दिख रहा है क्या, स्केच एक सिंगल क्लिक करनी है आपको, लेफ्ट क्लिक, तो ये स्केचर वर्कबेंच ग्राफ जैसा आ जाता है। ये 2D है, 2 डायमेंशन इसमें सब बना है। ओके, तो यहाँ पे भी देखो मैंने मेरे हिसाब से मैंने इसको निकाला था, ये ऊपर किया नीचे ऐसा कुछ भी किया, तो यहाँ पे भी आप राइट क्लिक करके कस्टमाइज कर लो, टूल बार, रिस्टोर ऑल कंटेंट्स एंड पोजीशंस। तो अगेन रीसेट करके लेना है आपको, जिससे कि आपके जो भी कमांड्स है वो प्रॉपर डायमेंशन, प्रॉपर जगह पे चले जाएंगे। ये ऐसे आ गए होंगे तो उसके टॉप रिबन को सिलेक्ट करके ऊपर ऐसे डाल सकते हैं। ये नहीं लगता इसलिए मैं बंद कर देता हूं। अभी देखो इसमें भी कौन से टास्क बार यूज होने वाले हैं। ये व्यू टास्क बार तो वही कॉमन है जो 3D में भी था, 2D में भी। ओके, उसमें बाद में ये ऑपरेशन टास्क बार है। ओके, ये प्रोफाइल टास्क बार है जिससे कि हम अलग अलग शेप्स वगैरह लाइंस क्रिएट कर सकते हैं। और ये है कंस्ट्रेंट टास्क बार, दिस इज कॉल्ड एज अ कंस्ट्रेंट टास्क बार, जिसमें हम डायमेंशंस वगैरह दे सकते हैं, डायमेंशन, और उसको वो पैरेलल, परपेंडिकुलरिटी, ये जो रिलेशंस है बिटवीन द प्रोफाइल्स वी कैन गिव दैट रिलेशन। ओके, और ये वाला एग्जिट वाला, इससे बाहर जाने के लिए भी हमें कुछ तो चाहिए, तो वो दैट इज दिस कमांड इज यूज्ड। कौन सा, येलो अपवर्ड डायरेक्शन में ये वाला जो है ये। तो इतने कमांड्स इसमें यूज होने वाले स्केच में। ओके, तो रीसेट करता हूं मैं। ऐसा आया होगा तो उसको उठा के ऐसे ऊपर रखो। अभी देखो ये हमें बनाना है क्या, एल शेप। तो सिंपल है, इसमें कमांड है प्रोफाइल कमांड में जाना है, इसको सिलेक्ट करना। लाइन से भी बना सकते हो, पर लाइन बनाते हम क्या होता है, एक लाइन बनाओ फिर से जाओ, लाइन फिर से ले, कंटिन्यूअस लाइन नहीं बनती। कंटिन्यूअस लाइन चाहिए तो ये वाला कमांड यूज आता है, प्रोफाइल, ये ऐसा। ओके, इसको सिलेक्ट किया, ऑरेंज हो गया। आपको क्या करना है, सेंटर ओरिजिन पे आना है। देख लो पहले 2 मिनट का काम। सेंटर, ये कर्सर लेके आना है आपको, सिलेक्ट किया उसको, कर्सर सेंटर पे लेके आया। ये देखो यहाँ पे क्या दिखता है आपको, एक सर्कल और उसमें एक डार्क सर्कल। इसका मतलब क्या है, कर्सर बराबर एग्जैक्ट ओरिजिन पे। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो कैसा शेप है देखो, हाँ ऐसा जाके ऐसा फिर ऊपर जा रहा है, ऐसा करके एल शेप है। तो ये मैं वैसे ही सेम रिपीट करूंगा यहाँ पे। ये देखो ये ऐसा लिया। अभी कभी भी तिरछी लाइन रहेगी, व्हेन द लाइन इज नॉट लीनियर इट विल बी इन व्हाइट कलर, और जब लीनियर हो जाएगी तो ब्लू कलर में दिखाई देगी। ओके, इसलिए क्या करना है, ये रहना चाहिए। सिर्फ माउस को आपको प्रेस नहीं करना, एक बार क्लिक किया वो छोड़ देना है बटन, लेफ्ट क्लिक, और फिर आपको डायरेक्शन देनी है आपके लाइन को, ये डायरेक्शन में चाहिए मुझे, फिर लेफ्ट क्लिक करना है तो वहां पे रुक जाती है। फिर ऊपर लेके जाना है, लेफ्ट क्लिक, उसको पकड़ के ऐसा नहीं करना तो ऐसा रेडियस बन जाता है, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये नहीं करना, कंट्रोल जेड किया तो फिर से रिटर्न हो जाता है। ये लिया, ये देखो यहाँ से मैंने यहाँ लिया, ये डायरेक्शन दिया, उसको लेफ्ट क्लिक किया,
माउस को सिर्फ लेफ्ट क्लिक करने के लिए जहाँ पे रुकाना है वहां ही लेफ्ट क्लिक करना है। ये देखो यहाँ क्लिक किया, फिर से इधर डायरेक्शन दिया उसको, यहाँ पे भी लेफ्ट क्लिक किया, देखो वो जब सेंटर में आ गया तो ब्लू लाइन का उसने रेफरेंस दिया कि वो भाई तुम फिर से जहाँ पे इनिशियल था वहां पे आ गए, और फिर से नीचे आना है और जहाँ पे स्टार्ट किया था ओरिजिन वहां से फिर से आके वो देखो फिर से 2 सर्कल दिख रहे हैं आपको, देन अगेन क्लिक। तो अब जब आपका प्रोफाइल क्लोज रहेगा देन इट विल शो यू ऑरेंज कलर, अदरवाइज इट विल नॉट शो। या ओपन रहेगा किधर तो आपको ऑरेंज नहीं दिखाएगा, यानी कि आपका था तो एंड ओपन। सो ऑलवेज योर प्रोफाइल शुड बी क्लोज्ड, कभी भी क्लोज रहना चाहिए, तभी वो आगे जाके एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज इट विल शो यू द एरर। ओके, सिर्फ डायरेक्शन देके ऐसा एल शेप बना दो, चलो बनाओ असं नसतं रे। बन गया। ओके, अब ये जो है ये सिर्फ प्रोफाइल मैच हो रही है, but डायमेंशन इज नॉट मैचिंग टू दैट एग्जैक्ट ड्राइंग। ओके, जिसके डायमेंशन सबके अलग अलग आए होंगे, तो हमें क्या करना है, वो जो हमें ड्राइंग में दिया है वो वाला डायमेंशन उसको देना है। तो कैसे देना है देखो कि क्या है वो पहले देख लेना। ये 100 है, ये 22 है, ये 15 है और ये 75। तो ये डायमेंशन देना। तो डायमेंशन देने की भी तरीका है, सबसे छोटे डायमेंशन पहले देने हैं, उसको अल्टर करके देना है, और फिर बाद में बड़े डायमेंशन आपको अल्टर करना है। पहले डायरेक्टली आप दे सकते हो, उसके बाद अल्टर करते समय छोटे डायमेंशन से स्टार्ट करना है। डायरेक्टली कैसे देना है देखो, बगुन गया, ये ब्लू कलर का बॉक्स दिख रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ कंस्ट्रेंट कमांड। सो क्लिक ओवर दैट ब्लू कमांड, डबल क्लिक करना है तो वो एक्टिव रहता है कंटिन्यूस, फिर से हर बार जाके क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो डबल क्लिक करो, ये वाले लाइन को डायमेंशन देना है, क्लिक करो लाइन को, तो ये वाले डायमेंशन को लाइन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे जाके क्लिक करूंगा और फिर से लेफ्ट क्लिक करके छोड़ दूंगा, फिर से इसको जाऊंगा, इसको लेफ्ट क्लिक करके छोड़ दूंगा, फिर से इसको लेफ्ट क्लिक करूंगा, फिर से लेफ्ट क्लिक करके छोड़ दूंगा, जो जगह पे चाहिए मुझे वहां पे लाके छोड़ दूंगा। अब मुझे अल्टर करने हैं डायमेंशंस, तो एस्केप बटन दबाना है ये कमांड से बाहर जाने के लिए। एस्केप बटन दबाया तो देखो वो ऑरेंज कलर चला गया। पहले सब डायमेंशन दे दो, ये जैसे मैंने दिया है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ दे दो उसको। एक्स्ट्रा डायमेंशन नहीं देने, नहीं तो वो ओवर कंसर्न हो जाएगा। जैसे मैंने दी उतने दो पहले, ये देखो ओवर हो गए। ये एक एक्स्ट्रा ऊपर दिया था, ऊपर वाला डिलीट कर, ऊपर वाला डिलीट कर, ऊपर जो ये वाला है यहाँ पे लिख दिया था, यहाँ पे दिया है वो डायमेंशन सिलेक्ट करा, हाँ सिलेक्ट करो उसको, सिलेक्ट कर, हाँ डिलीट बटन अब दे उसको, हाँ ठीक, ओवर कंस्ट्रेंट हो गया। वो मैजेंटा कलर इंडिकेट्स दैट योर प्रोफाइल इज ओवर कंस्ट्रेंट, यानी हद से ज्यादा डायमेंशन दे दी। इवन आप इजी भी जब ड्रॉ करते हो उसमें भी कोई डायमेंशन रिपीट नहीं करना, ओके, जितना डायमेंशन में आपका कवर हो रहा है उतने डायमेंशन में करना। देखो अब ध्यान दो, इसको कैसे चेंज करना है।
अभी देखो आपने ज्यादा डायमेंशन दे दी, यहाँ पे ये लाइन को डायमेंशन देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे समझ में आ रहा है ये 140 है, ये 40 है, तो ये जो इसके जो माइनस रहेगा उतना ही रहेगा, तो ये डबल डबल देने की जरूरत नहीं, डिलीट करो। ऊपर ऊपर के लाइन डायमेंशन को कर एस्केप करो, पहले एस्केप करो, एस्केप बटन कीबोर्ड में का एस्केप बटन, एस्केप एस्केप कोपऱ्याला असतो वरती लेफ्ट, डिलीट करो सब डायमेंशन। हाँ, वो जो एक्स्ट्रा जो दिख रहे हैं ना डिलीट करो, सिलेक्ट करके डिलीट करो, डिलीट बटन असतो कीबोर्ड में। हाँ, नहीं नहीं ये देखो कहा तो डबल डबल आया, हाँ कट करो, लाइन पण कट कर दिया, अंडू करो, कंट्रोल जेड, वो डायमेंशन को सिलेक्ट करो बस। हाँ आप क्लिक करो, डिलीट डिलीट, मैंने जितने दे देखो 1 2 3 4 डायमेंशन आने चाहिए। अभी देखो इसको कैसे चेंज करना है, तो डायग्राम देखना है आपको, कितना है ये 22, ये कितना है 15, फिर छोटे से चालू करना है, 15 का है यहाँ पे 15, डबल क्लिक करना है वो डायमेंशन से, डायमेंशन पे डबल क्लिक करना है और फिर 15 टाइप करना है, ओके करना, एंटर मारो, 15 टाइप करके एंटर मारो, आ जाएगा। ओके उसके बाद देखो ये 22 है ना, क्या है कितना है वो 22 है, तो ये 22 करो, इसको डबल क्लिक 22 एंटर, ये कितना है 100 है, डबल क्लिक 100 एंटर, ये कितना है 75 एंटर, ये बन गया अभी एग्जैक्ट द सेम डायमेंशन ऑफ द ड्राइंग इन योर स्टेटमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो है वो डायमेंशन। अभी देखो ये कलर दिख रहा है आपको ग्रीन कलर, अभी ये बच्चे के इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, एक फाइल उड़ गई है इसलिए कलर का कॉम्बिनेशन कुछ दिखाई नहीं दे रहा उसमें, ये बराबर है, देखो इनका बराबर दिख रहा है और मेरे इसमें भी दिख रहा है। तो ग्रीन कलर इंडिकेट्स दैट योर प्रोफाइल इज प्रॉपरली कंस्ट्रेंट, यानी कि जो डायमेंशन जितने देने थे वो बराबर दिए हैं और वो हिलेगी नहीं। ये देखो यहाँ पे ऐसा मैं किया, हिलता है क्या नहीं, हिलता है क्या नहीं। हाँ? अगर मैंने इसको एक डायमेंशन को डिलीट किया तो ये व्हाइट कलर होगा, दिस इज कॉल्ड एज अंडर कंस्ट्रेंट, तो ये क्या हो सकता है, हिल सकता है। अगर ये बच्चे ने जैसे डायमेंशन एक्स्ट्रा दे दिए थे, देखो ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, ये इसको क्या बोलते हैं, ओवर कंस्ट्रेंट। एक रहता है प्रॉपरली कंस्ट्रेंट जो ग्रीन दिखाई देगा, अंडर कंस्ट्रेंट व्हाइट कलर हो जाएगी लाइट कहीं तो वो हिल सकती है, दैट इज अंडर कंस्ट्रेंट, और ग्रीन सॉरी मैजेंटा कलर इज ओवर कंस्ट्रेंट, हद से ज्यादा डायमेंशन दे देना। सो आपके डायमेंशंस प्रॉपर होने चाहिए, इट शुड बी प्रॉपरली कंस्ट्रेंट। ओके ये समझ में आया। नाउ एग्जिट दिस वर्कबेंच, ये 2D से आप 3D में जाना है हमें, तो क्या करना है, देखो ये येलो कलर का और ये ब्लू कलर का जो बॉक्स है, नहीं वो सिलेक्टेड है इसलिए ये, और अपवर्ड एरो जो है उस पर क्लिक करो, इससे आप एग्जिट हो जाओगे, बाहर चले जाओगे। तो अभी कभी भी देखो आप साइड में क्लिक करना नहीं है अभी, हाँ तो ये ऑरेंज जो दिख रहा है ना, ये ऐसे सिलेक्टेड रहना चाहिए। अगर व्हाइट हो गया तो आपको फिर से कमांड यूज करके सिलेक्ट करना पड़ता है उसको। ओके तो ऑरेंज रहना चाहिए, उसको अभी साइड में क्लिक नहीं करना। अभी क्या करना है, इसको वॉल्यूम देना है। तो वॉल्यूम देने के लिए मैं क्या करूंगा, आई विल यूज वन कमांड नेम एज पैड करके, जहां पे स्केच लिया था उसके नीचे ही है पैड, ये देखो पैड, इस पे क्लिक किया तो बाय डिफॉल्ट वो 20 mm दिखाई देता है आपको। ओके तो वो नहीं देना है, हमें अपने डायमेंशन के हिसाब से देना है। कितना है वो, 64 विड्थ है, 64 इज द विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अभी 64 भी दे सकते हो आप, और या तो आपको अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर में रखना है, क्योंकि ये रिब भी है ना बीच में, सेंटर में बनानी पड़ेगी, फिर से मुझे वो सेंटर लेना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा। तो उससे अच्छा क्या है कि आपका प्रोफाइल बीच में रखना होगा, तो आपको क्या करना है, ये कमांड में ये चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, मिरर एक्सटेंड। मिरर एक्सटेंड का मतलब क्या है कि वो प्रोफाइल आपके बीच में रखेगा, 20 mm इधर भी बना रहा है वो, 20 mm इधर भी बना रहा है, यानी 40 mm बना रहा है। अभी 64 का आधा कितना होगा, 32। तो यहाँ पे क्या करना है, इंस्टेड ऑफ 64 यू हैव टू यूज 32। तो क्या बनेगा, वो टोटल 64 बनेगा।
32 एक साइड को जाएगा, 32 एक साइड को। ओके, मिरर एक्सटेंड पे क्लिक करना है, कंपलसरी ये मिरर एक्सटेंड पे क्लिक करना है, जिससे कि 32 एक साइड, 32 एक साइड, 64 नहीं लेना है। सो अभी क्या होगा आपका 3D में ये बन गया। ओके करें, ये देखो आपका ऑब्जेक्ट अब बराबर सेंटर में हो, प्लेन दिख रही है आपको, सेंटर में है। ठीक है, बन गए। अब ये मैं ऐसा जो मूवमेंट कर रहा हूँ, रोटेट करना, फिर उसके बाद ऐसा ये करना माउस से, हाँ, फिर जूम इन जूम आउट करना, ये कैसे करना है। ओके, ध्यान दो इधर। तो माउस के शॉर्टकट बता रहा हूं आपको। तो देखो, रोटेट करना होगा तो स्क्रॉल बटन दबा के रखना है, राइट क्लिक दबा के रखना है, तो ये ऐसा सर्कल क्रिएट होता है और फिर आप रोटेट कर सकते हो। दोनों प्रेस करना एक साथ, राइट क्लिक एंड स्क्रॉल बटन। ये देखो, फिर से देखो, डिलीट करता है। ये प्रोफाइल कमांड लिया, प्रोफाइल कमांड लेके, ये देखो प्रोफाइल कमांड लिया, सेंटर में लेके आया, क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक, आगे लेके आया, लेफ्ट क्लिक किया, फिर से तिरछा लिया, लेफ्ट क्लिक। इसके बाद इसको डायमेंशन दिया मैंने 30 है ना, तो ये 15 देना है मुझे, डायमेंशन 15। ओके, और ये इनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो ये और कंट्रोल बटन यूज करना है, कंट्रोल बटन, तब मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो आप। इसको सिलेक्ट किया, फिर से डायमेंशन दिया मैंने, तो 45 हो रहा है, तो इसको मैं चेंज करके 60 करूंगा। ओके, होगा क्या? एक काम करते हैं, यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे अगले इसमें, क्योंकि इसको और टाइम है, रिम भी बनाना है और ये भी। अभी क्या करो, इसको सेव, ये क्या करो, बाहर आ जाओ, सीधा इसमें से एग्जिट करो, एग्जिट कर लो, ऐसा एग्जिट कर लो सीधा, और फाइल में जाओ और इसको सेव कर लो। आपके बैच का नाम क्या है, D2 है ना, D2, ऐसा मैं सेव कर लेता हूँ इसको। ओके, यस बोल दो, जो भी अभी जितना भी काम हुआ है वो सेव हो गया। आपको एक फोल्डर नाम का बनाओ, क्योंकि इसको टाइम लगेगा, क्योंकि ऐसे बना के हमें पॉकेट करना है, रिम मारना है, ये पहले आधे घंटे में लगेगा और कंप्लीट करना। ओके, तो अभी क्या करो, शट डाउन कर दो और पीसी पूरी बंद करके चेयर्स सगळे व्यवस्थित लावून मग जाओ।